See, you have to go in your teams. Okay. So in your teams, you will select FRBSC IT semester 1, 21, 22. Your team. ये जाना When you select that, in channels you will select digital electronics, and in that file section, okay, you have this unit 1 I have put up for notes, in which conversions what is currently going on in DE introduction PDFs I have put up. Today whatever I will teach, that will also get uploaded and updated in this conversions only. Right now I will show you. Right now wherever I have done, whatever I have done in the class, that all thing is there. Everybody is able to see now. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So see up to up to decimal to hexadecimal I have put up. Now further whatever I will do, I will update in this one. Okay. So this is about the notes. Now here only in digital electronic folder, in this section only I will put the whole अबे reference. उधर जाना लौड़े जाना उधर Vishwakarma, Vishwakarma, Vishwakarma Aditya, you can leave the class. Vishwakarma Yes, Aditya, you can leave the class. yes, ma'am. Who spoke right now? Yes, ma'am. What Who happened? spoke right now? Why, ma'am? Somebody spoke in very abusive language. Whoever has spoken that, please leave the class. I was not. If you're going to speak in this language, then I will better keep you all muted. If anybody is trying to create nuisance in the class, then it is not going to get tolerated. Please make it very clear. If you want to sit the lecture properly, you sit. Everything is going on record. Whoever has spoken at that moment in minutes can be caught and can be given a notice or can be removed absolutely, and his admissions will get cancelled. Please remember, do not ever try to do that again. No such nonsense is going to get tolerated. I'm making it very, very clear. You all should have some sense. Whoever has done it should have some sense. You are not a kid to do all these things. Using abusive language is only going to show what upbringing is, nothing else. You're spoiling your mom and dad's name. That's it. Starting with the lecture.
Okay, now you listen to me because you don't understand what I'm trying to say. Please put it in the chat box. All of you are able to see the screen now. I have muted you all because early in the morning I don't want to spoil my whole day mood and hear nonsense from you. I'm not there. I'm not for that over here. Okay? Okay. Thank you. Thank you people for responding. Thank you very much. Okay. So quickly moving on. Yes, thank you. That's it. No more reactions I want. Now the total 12 conversions are there. Okay. Total not 12 conversions are there. I will explain you how. So we have binary number system. Octal, so we have binary, octal, hexadecimal. These are the number systems what we are learning. Okay, decimal we already know. So the convergence is binary to decimal, octal and hex. Binary getting converted to decimal, octal and hex. And vice versa. In opposite way also. Okay? Is binary to decimal, decimal to binary to octal, octal to binary to hex, hex to binary. Okay. Then through octal we will have again decimal, binary and hex. Okay. Vice versa. And then hex we will have binary, decimal and octal. Okay. So now binary to decimal and decimal to binary. We finish up doing like here you can put one more
as decimal and conversion with respect to binary, octal and hex. Okay, so this is the common thing. Binary to decimal, decimal to binary. These two conversions are done. Then next is binary to octal. So binary to octal and octal to binary. This is done. Then next is binary to hex. Done means I will be doing it. Binary to hex, binary to hex, and hex to binary. Okay. Now next we start with the next one. It will be octal to decimal, decimal to octal. Then octal to hex, hex to octal. Okay, you can check out that. Octal to decimal is this, and decimal to octal is this. Okay, then octal to hex is this, and hex to octal is this. Okay, then hex to decimal, decimal to hex. Hex to decimal is this, and decimal to hex is this, which I have already marked. Here I missed hex to octal. So these are the total 12 conversions which you are supposed to do. Okay. So now okay. Out of which now we have done binary to decimal, decimal to binary, then octal to decimal, decimal to octal, then hex to decimal, and decimal to hex. These 6 conversions we did. These are all calculative type. Means in this the multiplication and division by the basis happen. Other are all simple. Now what we are going to learn. Okay, that is binary to octal, octal to binary, binary to hex, hex to binary, octal to hex, hex to octal. These all next 6 conversions are very easy, but for that we should remember the table of the number system. That should be by hearted. Then the thing will become very, very easy for you. Okay, so I just wanted to show you that how the total 12 conversions come. Nothing else. Okay, so now this is okay. So this is the different representation of the number systems in the various number systems. Decimal, the same number system is written over here. Decimal number system 0 to 15. Binary we write it. We know, I have told you the shortcut how it has to be written. 0 0 0 to 1 1 1 1, and then octal goes from 0 to 7, then 10 11 12 13 14 15 16 17, and hexadecimal
Hexadecimal goes from 0 to 9 and A to F. Okay, so this particular table should be by hearted. By hearted in the sense that you should know that 10 in decimal means 1010 in binary. Okay, and means A in octal. Oh, sorry, A in hex and 12 in octal. That you should know. Other thing is that for octal number representation in binary, if you see octal numbers, they are 0 to 7. हाँ, तो अगर तुम 0 to 7 के बाइनरी वैल्यूज देखोगे तो 000 से लेके 1011 तक है, यानी कि इनका जो ये लास्ट बिट है जिसे हम कहते हैं MSB बिट, ओके, जिसे हम कहते हैं MSB बिट. So here this right hand side bit is called as LSB, left hand side bit is called as MSB. LSB stands for least significant bit, means it is having the least weightage, and MSB stands for most significant bit because it is having the most weightage. तो जनरली जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, चाहे वो नंबर 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, 8 डिजिट हो, 16 डिजिट हो, 32 डिजिट्स हो, whatever may be the bit representation, always the leftmost bit will be the MSB bit and the rightmost bit will be the LSB bit. ठीक है, तो अगर आप ऑक्टेल नंबर सिस्टम रिप्रेजेंटेशन देखते हो 0 to 7 नंबर्स का, ठीक है, सो फॉर दैट वी रिक्वायर ओनली 3 बिट रिप्रेजेंटेशन. 3 बिट्स काफी है 0 to 7 रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी फॉर्म में. ओके, ये जो लास्ट वाला बिट है, लास्ट वाला बिट, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज इट इज थ्रू आउट 0. तो जनरली जब भी ऑक्टेल नंबर्स हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो 3 बिट फॉर्म में करते हैं, एंड हेक्साडेसिमल नंबर बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो 4 बिट फॉर्म में करते हैं. ठीक है, so that is representation of different number systems. Now, as I have muted all of you, if it is clear, no issue. But if the thing is not clear, if you have any doubts, please text me. Whoever has a doubt, text me. I will explain you accordingly. अगर clear है तो कुछ भी मत करना, कुछ भी लिखना मत chat पे. अगर clear नहीं है, that person will react over here. जब तक तुम सीखोगे नहीं बेसिक एटिकेट. प्रथमेश has said, मैम प्लीज वंस रिपीट. यस प्रथमेश, आई विल. ये जो तुमको मैंने म्यूट करके रखा है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बिकॉज अनम्यूट करके डाउट पूछना बहुत इजी हो जाता है. दैट इज वन एडवांटेज व्हेन यू अटेंड द लेक्चर्स. लेक्चर्स रिकॉर्डिंग हो रहा है, लेक्चर्स तुम बाद में सुन भी सकते हो, बट लेक्चर्स सुनते समय तुम डाउट्स नहीं पूछ सकते हो जो तुम लाइव सेशन में पूछ सकते हो मुझे डायरेक्टली, अगर तुम बराबर टॉपिक सुन रहे हो. और डी टॉपिक ये ऐसा है, ये बहुत लाइव है. अगर तुम सुनते ही उसको अडेप्ट कर लोगे, एंड इफ यू नो हाउ टू एग्जैक्टली डू इट इन द राइट वे, देयर इज नथिंग लाइक इट, यू कैन स्कोर फुल एंड फुल मार्क्स इन इट. बट अगर नहीं समझा तो वो 0 से नहीं समझेगा, बिकॉज इट इज थ्रू आउट लिंक्ड है टॉपिक. ठीक है, तो अगेन आई एम रिपीटिंग दिस.
Please pay attention. So now I'm writing first binary numbers. How do we write? I will show you the easy form. 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1. लास्ट डिजिट का वेटेज है 2⁻0 यानी कि 1, तो सिंगल 0 सिंगल 1. नेक्स्ट उसके आगे आता है 2⁻1 यानी कि 2, तो 2 zeros 2 1, 2 zeros 2 1, 2 zeros 2 1, 2 zeros 2 1. उसके आगे नेक्स्ट पोजीशन में आता है 2⁻2 यानी कि 4, तो 4 zeros 4 ones, 4 zeros 4 ones. Next most position is 2⁻3, means 8 zeros and 8 ones. That is how you get this table. This is the basic table. Now you write down the other things also. So octet number system में numbers है 0 1 2 3 4 5 6 7. 7 के बाद डायरेक्टली नेक्स्ट पोजीशन में LSB पोजीशन में रिसाइकल होता है 0. नेक्स्ट पोजीशन इंक्रीमेंट होता है 1. उसके प्रायर वो 0 था, तो आता है 11 12 13 14 15 16 17. 17 के बाद डायरेक्टली 20 आएगा. नेक्स्ट हेक्स नंबर्स में नंबर्स आएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 के बाद फर्स्ट 6 अल्फाबेट्स आएंगे A B C D E and F. ये सब ध्यान में रखना है, ठीक है. सो यू शुड रिमेंबर दिस टेबल बाय हार्टेड. बाय हार्ट नहीं हो रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा, बिकॉज हमें ये एंड ऑफ फर्स्ट ईयर BSc IT तक लगने वाला है सेम 1 सेम 2 में, तो ध्यान में रखना, ठीक है. तो अगर जैसे मान लो मैंने बोला कि डेसिमल 10, तो तुम्हें पता होना चाहिए डेसिमल 10 का बाइनरी वैल्यू है 1010, ऑक्टल वैल्यू है 12 और उसका हेक्स वैल्यू है 8. अगर मैं बोलती हूँ 15, तो बाइनरी वैल्यू है 1111, ऑक्टल है 17 एंड हेक्स है F. ऑक्टल इतना नहीं लगता है, बट डेसिमल बाइनरी हेक्स हमें पक्का लगेगा. सो वी शुड नो दीज वैल्यूज ऑन टिप ऑफ द टंग. It should be that much thorough. You should by heart it and keep it. Okay? नहीं हो रहा है तो the easy thing is जब भी आप BE का पेपर लिखते हो, थियरी पेपर लिखते हो, तभी आप आंसर पेपर के बैक साइड पे ये टेबल ड्रॉ करके रख दे सकते हो आपके रेफरेंस के लिए, आपको यूज हो, ठीक है. Now the most important point to be told over here is that remember, when I want to represent octal number in binary, it will come in 3-bit representation. And when I have to represent hex number in binary, it will come in 4-bit representation. Okay, octal in 3-bit representation, hexadecimal in 4-bit representation. ऐसा क्यों? अभी octal को ध्यान से देखो. octal में कितने numbers है? 8. तो जो मैं ये 8 numbers को लिख रही हूँ 0 to 7 तक अगर तुम देखते हो, तो करस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर्स देखो 0 to 7, 0 0 0 से लेके 0 1 1 तक. ये सारे नंबर्स में ये जो लास्ट डिजिट है, इसका कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि ये 0 है. इसके लिए हम ऑक्टल जब भी बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो 3-बिट फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज ये जो 3 बिट्स है ना, ये इनफ है कोई भी बाइनरी नंबर को ऑक्टल में बराबर से रिप्रेजेंट करके देने के लिए. वेराज अगर मुझे हेक्साडेसिमल नंबर बताना है, तो मुझे चारों नंबर्स लगने वाले हैं, चारों डिजिट्स लगने वाले हैं बाइनरी के बिट्स. It has to be in 4-bit form because the MSB position is having ones over here, which has some meaning. So that's why if I have to represent a hexadecimal number, it has to be in the
इट हैज़ टू बी इन द 4-bit रिप्रेजेंटेशन फॉर्म। तो ये ध्यान में रखना, 3-bit रिप्रेजेंटेशन और 4-bit रिप्रेजेंटेशन। और एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे लिखना था वो ये था कि ये वाला है, इसको हम LSB कहते हैं, दिस वन MSB, तो मैंने पहले बोला LSB stands for least significant bit, बिकॉज उसको सबसे लीस्ट वेटेज है। एंड MSB stands for most significant bit, ये नाम याद करके रखना। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट तुम्हारा राइट हैंड साइड पे है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड में है। नाउ इज दिस क्लियर Prathamesh? You can respond in the chat box. Ma'am, you said 0 in the last is negligible, but it is the most significant bit now. Then how it is negligible? I didn't get you, Purva, what you want to ask. नेग्लिजिबल इन द सेंस इट इज, उसका वेटेज वैल्यू नहीं है पूर्वा। यानी कि ये जो 3-bit फॉर्म में जब भी हम ऑक्टेल नंबर लिखते हैं तो नेग्लिजिबल का मतलब है वो 0 है, इट इज नॉट एडिंग टू द वैल्यू। जैसे कि अगर मैंने ये 5 लिखा 0101, तो ये है 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, तो ये जीरोस कैंसिल हो जाते हैं। 2⁻1 इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 4, 2⁻0 इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 1, तो 4 + 1 5 हो जाता है। एंड दैट्स वाई 0101 का डेसिमल वैल्यू इज 5। तो ये जो लास्ट वाला पोजीशन है MSB, इट इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द वैल्यू, दैट्स वाई वी कैन इग्नोर इट व्हेन वी आर रिप्रेजेंटिंग द ऑक्टेल नंबर इन फॉर्म ऑफ बाइनरी। बट हेक्स में क्या होता है, वो आ जाता है, हेक्स में है वैल्यू 1 है। जैसे कि अगर मैंने 1101 लिया तो ये है 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3। हाँ, 1101 इज 13। तो अगर तुम ऐड करोगे तो 8 + 4 + 1 होगा, विच इज 13। तो दिस इज हैविंग अ वेटेज एंड अ वैल्यू, एंड दैट्स व्हाई हेक्साडेसिमल नंबर्स हम 4-bit रिप्रेजेंटेशन में करते हैं। नाउ इज इट क्लियर पूर्वा? Okay. Okay. Now, coming back to our topic. So let's start binary to hexadecimal. हाँ, तो पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें मैंने कुछ भी स्टेप्स नहीं किया है, तो कोई भी रैंडम एग्जाम्पल लेंगे हम। सो मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया ओके, ऐसे कुछ मैंने एग्जाम्पल लिया। ये बाइनरी वैल्यू को हमें इक्विवेलेंट हेक्स में कन्वर्ट करना है, तो वो क्या आएगा? तो पहले तो ये वैल्यू को 0s और 1 को वैसे के वैसे बराबर से लिख लो। तो 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 डॉट 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1। I repeat and check it.
1011 0100 10 3 times 1 1 0101 dot 1011 01101। ठीक है, अभी क्या करना है, बाइनरी टू हेक्स में वी हैव टू ग्रुप द बिट्स फ्रॉम डेसिमल पॉइंट इन ग्रुप ऑफ 4। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ 4 में हम उनको ग्रुप करते जाएंगे। डेसिमल पॉइंट से towards left I go for integer value, one group of 4, second group of 4, third group of 4, fourth group of 4। ये एंडिंग का कंप्लीट नहीं हुआ, टाइमिंग के लिए लीव इट लाइक दैट। नेक्स्ट डेसिमल पॉइंट से टुवर्ड्स राइट वी स्टार्ट ग्रुपिंग इन ग्रुप ऑफ 4 1 2। अभी ये भी जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो ऐसे हो सकता है कि जो एंड में बचेंगे टुवर्ड्स MSB एंड टुवर्ड्स LSB you may not be able to complete the proper group of 4। तो वो केस में हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, वो केस में हम एडिशनल जीरोस, we will put additional zeros towards left and towards right to so that it becomes a group of 4। तो यहाँ पे ये 2 डिजिट्स है तो हम 0 0 ऐड करेंगे, यहाँ पे ये 2 डिजिट्स है तो हम 0 0 ऐड करेंगे, जीरोस ही ऐड करना है, वंस नहीं। ठीक है, ताकि ये ग्रुप ऑफ 4 बन जाए। सो डेसिमल से टुवर्ड्स लेफ्ट यू विल गो फॉर इंटीजर पोजीशन वैल्यू एंड डेसिमल से राइट यू विल गो फॉर फ्रैक्शन वैल्यूज। बट ग्रुपिंग शुरू होगा डेसिमल पॉइंट से ही, ध्यान में रखना। ठीक है, तो अभी जीरोस ऐड करने के बाद ये ग्रुप ऑफ 4 बन गया। मैं इसको तुम्हारे लिए हाईलाइट कर देती हूँ। अभी इसके इक्विवेलेंट नंबर्स हमें लिखने हैं कि व्हाट इट इज। ओके, सो दिस इज डेसिमल पॉइंट 0101, व्हाट इज दिस 5, 1111, व्हाट इज दिस F, 0010, व्हाट इज दिस 2, 1101, व्हाट इज दिस D। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दैट इट शुड बी बाय हार्टेड एंड ऑन द टिप ऑफ द टंग। अगर तुम्हें ध्यान में नहीं है तो तुम चार्ट रेफर कर सकते हो। F is 1111 and D is 1101, you can see in the chart। okay, that's why मैंने बोला कि अगर ध्यान में नहीं रहता है तो जो हमारा थियोरी पेपर रहता है, आंसर पेपर, उसके लास्ट पेज पे ये टेबल बना दो और उधर से तुम रेफर करके कन्वर्ट कर सकते हो। Then 0010 is 2। वैसे ही यहाँ पे 1011 is B, 1011 again it is B, and 0100 is 4। तो ये तुम्हारा आंसर आया। ठीक है, सो वी विल राइट डाउन द आंसर देन 2D 2F5 dot BB4 to the base 16। Did all of you understand? किसी को डाउट है तो रेस्पॉन्ड करो, समझा है तो उधर यस यस करके रेस्पॉन्ड मत करना। इफ एनीबडी इज हैविंग डाउट्स, मैम अगर वहाँ पर 0 होगा तो हम 1 1 डालेंगे या फिर 0 0। मैम कैन दिस कन्वर्जन बी डन डायरेक्टली लाइक फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल? नो, वो बहुत बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा बेटा, उसमें कैलकुलेशंस आएगा। ये इजी है ना काशिद, दिस इज इजी। तुम्हें पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा और ये कितने मार्क के लिए आएगा? 1 मार्क के लिए भी नहीं आएगा, 1 मार्क के लिए से 2 कन्वर्जन्स आएंगे। तुम्हें वो सब इतना बड़ा लंबा प्रोसीजर क्यों करना है? ओके, देन सुप्रीत मैम अगर वहाँ पर 0 होगा तो हम 1 1 डालेंगे या फिर 0 0। कहाँ पर बेटा, मुझे नहीं समझा।
एग्जैक्टली वेयर? मीन्स यहाँ पे क्या, मैं समझा, मुझे आई गॉट इट। लास्ट पोजीशन में ना, ये जो 1 थे, ये वाला पोजीशन पूछ रहे हो ना तुम ना? सुप्रीत, सदाशिव, ज्योति, भुवनगिरी, हाँ, ओके। सो अगर यहाँ पे 0 है, यस, यहाँ पे 0 है तो भी हमें आगे 0 ही ऐड करना है। अगर नहीं, यहाँ पे 0 है मीन्स अगर ये 1 नहीं होता, 0 होता तो वो नंबर ही हम लेते नहीं ना, वो 0 बन जाता था 2। ठीक है, देन वी वुड हैव नॉट गॉन फॉर अ कंप्लीट कन्वर्जन। अगर लास्ट में 1 बचा, इधर से ग्रुप ऑफ 4 हो गया है, 1 बचा, तो हम यहाँ पे 3 जीरोज ऐड करेंगे। हाँ, अगर यहाँ पे 0 बच रहा है ग्रुपिंग होने के बाद, तो यहाँ पे ऐड करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर तुम ऐड भी करोगे तो ये 0 0 0 0 0 बनेगा। ओके, सो यू कैन इग्नोर इट। Is that clear, Supreet? ओके मैम लिखा, यानी कि समझा नहीं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल आई एम शोइंग यू। ऐसे कुछ एग्जांपल है तो क्या आएगा, ठीक है? सो लिख लो नंबर 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 डॉट 1 0 1 0 0 1 0 0। हाँ, ये नंबर लिख ले। अभी ग्रुपिंग शुरू करो डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट की तरफ। ग्रुप ऑफ 4, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर। अभी यहाँ पे 3 बज गए, मैंने जानबूझ के ऐसे लिया। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं एक यहाँ पे 0 ऐड करूँगी, 0 ही ऐड करना है, ठीक है? और ये ग्रुप को मैं कंप्लीट करूँगी। अभी इधर ये एक ग्रुप बना, ये दूसरा ग्रुप बना। अभी इधर और कोई नंबर नहीं बचा, इसका मतलब है कि यहाँ पे 0 है, तो वो आगे हमें जीरोस ऐड करने का जरूरत नहीं है। डिड यू गेट इट नाउ सुप्रीत? अभी क्लियर हुआ? जानबूझ के मैंने ऐसा एग्जांपल दिया ताकि तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाए। Okay, now we will write down the values लिखेंगे हम, ठीक है? अब ये 1 1 1 1 जो है ये हो गया F, 1 0 0 1 हो गया 9, and 0 1 1 0 is 6, 1 0 1 0 is A, 0 1 0 0 is 4, ठीक है? तो इसका आंसर बनता है 6 9 F dot A4 in hex, ठीक है? So that's another example. I hope this is clear to all of you. If you're having any doubts, please message, please text. Okay. Next. Now इसका opposite, hex to binary. हाँ, hex to binary में what note I will put over here is
write each hex number in 4-bit representation form starting from decimal point. ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो with that let's go for an example. लेट्स से हमें कन्वर्ट करने के लिए दिया है नंबर AC5 to point BD41 to the base 16 is what in hex, सॉरी बाइनरी में क्या है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, डेसिमल पॉइंट दे दो। डेसिमल पॉइंट नहीं दिया तो तुमने डायरेक्टली लिखना चालू किया एक्चुअली तो भी चलेगा, वो सिर्फ बाय हार्टेड होना चाहिए तुम्हारा बराबर से। A is 1010, C is 1100, 5 is 0101, 2 is 0010, dot B is 1011, D is 1101, 4 is 0100 and 1 is 0001। ये तुम्हारा डेसिमल बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा हेक्स का। ठीक है, अभी ध्यान में रखना कि ये कंफ्यूजिंग, अगर तुम कंटिन्यूस बिट्स लिखते जाओगे तो तुम्हें कंफ्यूजिंग होगा नंबर पढ़ने के लिए, समझने के लिए कि तुमने राइट लिखा है कि नहीं है। सो द इजीएस्ट वे इज राइट प्रॉपरली। हमेशा हम जनरली नंबर्स को ग्रुप ऑफ 4 में लिखते हैं, हेक्स नंबर्स को, तो उसको 4 में लिखो। देखो मैंने 4 लिखा है, एक स्पेस छोड़ा है, 4 लिखा है, 4 डिजिट्स 4 बिट्स, एक स्पेस छोड़ा है। तो इससे क्या हो जाता है, अपना मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करने के लिए भी इजी हो जाता है। सो दैट्स द इक्विवेलेंट आंसर। सो बेसिकली ये A है, C है, 5 है, 2 है, डॉट डेसिमल पॉइंट BD41, तो तुम्हें अच्छे से समझेगा। सो कन्वर्टेड वैल्यूज मैंने लिखे, सो दैट बिकम्स योर आंसर। So then you can represent the answer A, C, 5, 2, B, D, 4, 1 to the base. I hope this is clear to all of you. Okay, if you have doubts, लिखना चैट बॉक्स में, लिखना डाउट्स है तो, नहीं है तो इट्स आई विल अंडरस्टैंड दैट यू हैव understood what I want to say. Is that clear to all of you? I will show you one more and then stop. Let's say we have to convert as ये बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। तो ये पहले नंबर्स को लिख लो, एक्स नंबर्स को, 90FC.E108। ठीक है, अभी 9 क्या है, 1001। What is 0? 0000. What is F? 1111. C? 1100. Dot E? 1110. 1 0001. 00000. A? 1010. So that becomes your equivalent answer. Then you can represent the answer.
0 0 0 0 1 0 1 0. I hope this is clear to everyone. Any doubts, please text. अगर doubts नहीं है, then it is fine. Okay.